भगवान की, ईश्वर की, खुदा की, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी और कृपा है मेरे पे कि कुछ लोग इस शहर में आते हैं मुझे शहंशाह कह के जाते हैं। कुछ लोग इस शहर में आते हैं मुझे सरकार कह के जाते हैं। मैं सरकार भी नहीं हूँ, शहंशाह भी नहीं हूँ, मगर क्या बोलते बगैर ताज का बादशाह हूँ। जो हमारे में से और राष्ट्रवादी में से टूट करके कॉरपोरेटर भागे थे 2010 में, 2012 में, अब उनको लगता है कि कांग्रेस की दुकान में नया माल आया है, अब इसकी एक्सपायरी 10 साल तक होने वाली नहीं है, तो चलो अपन वापस कांग्रेस के डब्बे में उड़ी मारते हैं। मगर राहुल गांधी जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है, जो लोग पार्टी के खराब वक्त में पार्टी छोड़ के गए हैं, ऐसे लोगों के बारे में पार्टी बिल्कुल नहीं सोची। सजीव जोसेफ साहब जो हैं AICC के ऑब्जर्वर हैं ठाणे लोकसभा के लिए कांग्रेस की तरफ से, और उनका बेसिकली जो दौरा है जिला कांग्रेस कमेटी में जाना, और जैसे आज वो सवेरे न्यू बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी में थे, वहाँ पे 2 असेंबली आती है, ऐरोली और बेलापुर, तो वहाँ पर BLA ब्लॉक लेवल ऑफिसर उसकी तैयारी कैसी है, बूथ कमेटी की तैयारी कैसी है, इर्रेस्पेक्टिव के कौन सी सीट अगाड़ी में किसको छुट्टी है, उनका जो पैरामीटर्स है, जो पार्टी की गाइडलाइन है कि आपको जाकर के बूथ पे कांग्रेस की तैयारी कैसी है, बूथ ऑफिसर्स, बूथ कमिटीज़ है कि नहीं, BLAs हैं कि नहीं, डिस्ट्रिक्ट की कमिटीज़ है या नहीं, सेल्स है कि नहीं, फ्रंटल्स है या नहीं, उनकी कमिटीज़ है या नहीं, प्रभाग, वार्ड, ये सारी चीज़ को एनालाइज करना, चेकअप करना, वहाँ के वर्कर्स से बात करना। और तो ठाणे, न्यू बॉम्बे, और आज वो दोपहर में अभी ठाणे में थे, ठाणे की मीटिंग उन्होंने पूरी की, और आज वो मीरा भाईंदर में आए। I'm Sajeev Joseph, MLA from Kerala. I'm from Kannur district, Irikur constituency. Being an AICC observer for Thane Lok Sabha, today I reached to Thane district, then visiting Medabalda district. Congress party along with Maha Vikas Aghadi, we are preparing for the election in a well manner. Congress party is getting ready for the election, and our all party units are trying to do our level best. As a united front, Maha Vikas Aghadi will win this election, and the election will be a shock to the Modi government, BJP government. Same like Lok Sabha election result in Maharashtra. Beyond that, this election, the same election result will be repeated in coming assembly election. So we are activating the party units every level and bridging with all our coalition partners. The party leaders are united, and we will ensure that maximum seats will be got elected from the district and from the state. So our honorable leaders, Mustafa Hussaini, the honorable working president of the party, PCC president, PCC office bearer, and all senior leaders are working together very seriously, and the process of the election preparedness are going well. So I request all of you to support Congress party for the betterment of the general public. The people of Maharashtra is totally frustrated, and the life of common people are in danger. To protect the communal harmony, democracy and socialism, we have to beat Congress, and Maha Vikas Aghadi should be win in Maharashtra. That not for the party, not for Congress, that for general public.
poor people of Maharashtra. Sir, you visited various areas of Thane. There is not even a single Congress MLA in Thane Lok Sabha constituency. How is the response from crowd, and will this number change in the upcoming elections of Vidhan Sabha? That is past. Next election you can see there will be changes in the state as a whole, and this front, Mahavikas Aghadi and Congress Party, will be a historical victory in the coming election. आपने जैसे कहा कि ठाणे डिस्ट्रिक्ट में कांग्रेस के एमएलए नहीं हैं, उन्होंने आपको बताया कि सीनियरो चेंज होगा। जैसे लोकसभा अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट आए हैं, वैसी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट महाराष्ट्र में भी आप देखेंगे, ऐसा उन्होंने बताया है। और ठाणे डिस्ट्रिक्ट में भी सीनियरो कांग्रेस का बदलेगा। महाविकास आघाड़ी के लोग ज़्यादातर के चुनते हुए आए हैं, आपको नज़र आएगा, ये उनका कहना है। और बेसिकली जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि उनका जो आना है वो असेसमेंट करना है ऑर्गेनाइजेशन को, और इसके लिए वो आए BLA, बूथ कमिटीज़, डिस्ट्रिक्ट कमिटीज़, फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन, सेल्स, कि इनकी क्या सिनेरो है, क्या कंडीशन है, कितनी हम स्ट्रेंथ में हैं, कॉरपोरेटर्स हैं, उनसे बात करना, इसके लिए बेसिकली वो आए हैं। सर, संगठन की अगर बात करें तो कांग्रेस की बहुत सारी नियुक्तियां आज भी खाली है, पदाधिकारी उस पर भरे दिए गए, फ्रंटल सेल के कहो या जो कहाँ पर, मतलब मीरा भाईंदर शहर में। अभी आप देखेंगे, अभी आप आएंगे तो आप देखेंगे क्या होता है कि माल जिसका ज़्यादा बिकता है, लोग उसकी दुकान में ज़्यादा गर्दी करते हैं। तो 10 साल से क्या हुआ कि आपको बीजेपी की दुकान में ही माल भरा हुआ नज़र आया, तो आप लोग उधर ही देख रहे थे। अब जैसे वहाँ पे माल पता लगा एक्सपायरी डेट का स्टॉक ज़्यादा रखा है उधर, तो अभी ग्राहक वहाँ से हटने लग गया है। और अभी जो नया स्टॉक आया हुआ है कांग्रेस की दुकान में, तो लोग अभी वहाँ पे गर्दी कर रहे हैं। तो अभी आप देखेंगे कि कांग्रेस की दुकान में फ्रेश माल आया है जिसकी एक्सपायरी सीधा 5 साल के बाद है। मुजफ्फर हुसैन का टिकट तय माना जा रहा है, क्या कांग्रेस या महाविकास आघाड़ी के लिए? देखिए 146 की स्थिति क्या है, उनके पास वहाँ के लिए कोई कैंडिडेट है? मैं आपको बताऊं कि महाविकास आघाड़ी का सीट का वाटअप अभी चल रहा है, एक चीज़, इसलिए मैं स्टेट का वर्किंग प्रेसिडेंट होने के नाते मैं आपको उसके बारे में कोई टिक्का टिप्पणी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकता हूँ। रही मेरे कैंडिडेचर की बात, मैं उसके बारे में भी आपको नहीं बोल सकता हूँ क्योंकि मैं एक वर्किंग प्रेसिडेंट हूँ एक, और कांग्रेस का कैंडिडेट फिक्स करने का अपना एक प्रोसेस एंड प्रोसीजर है। डिस्ट्रिक्ट पार्लियामेंट्री बोर्ड, स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड, सेंट्रल स्क्रीनिंग कमेटी, NCWC, तो ये पूरा प्रोसेस अभी होना बाकी है। अभी सिर्फ डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी से नाम PCC ने मंगाया है। अब स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड का भी डिसीजन बैठक होनी बाकी है। वो बैठक कब होगी? जब महाविकास आघाड़ी का सीट का डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कि 145 किसको जा रही, 146 किसको जा रही, 147 किसको जाएगी, 136, 137 भिवंडी, वसई, विरार, पालघर, मतलब पूरे स्टेट का एक बार महाविकास आघाड़ी का वो हो जाएगा तो स्टेट पार्लियामेंट्री बोर्ड बैठेगा। तो इसके लिए मैं उस पर भी आपको कुछ बोल नहीं सकता। हाँ, मगर ये बात पक्की है कि 146 हो मीरा भाईंदर के अंदर या 145 हो, यहाँ हम भले एक सीट लड़ते हैं या आधी सीट लड़ते हैं, मगर हमको काम दोनों पे करना पड़ता है क्योंकि शहर एक है। शहर एक होने की वजह से वातावरण जो शहर में बनता है वो महत्व का हो जाता है। उसका इम्पैक्ट 145 पे भी होता है, उसका इम्पैक्ट 146 पे भी होता है। महाराष्ट्र के अंदर लोगों को एक असेंबली लड़नी पड़ती है, हमको यहाँ 1.5 असेंबली लड़नी पड़ती है। महाराष्ट्र में लोगों को 350 बूथ संभालने पड़ते हैं, यहाँ हमको 750 बूथ संभालने पड़ते हैं। ये उसका फ़र्क है। आप संपर्क में है जो पार्टी छोड़कर आपसे आपके पार्टी में आना चाहते हैं? किसकी पार्टी छोड़ के? किसी भी पार्टी से। राजनीति, देखो राजनीति में क्या होता है, इलेक्शन के वक्त में जिस पार्टी का ग्राफ बढ़ता है तो लोग ताबड़तोड़ ट्रेन बदलते हैं, अपने रेलवे स्टेशन पे खड़े रहते हैं। फास्ट ट्रेन आ रही है 5:05 पे, स्लो ट्रेन आ रही है 5:04 पे, तो अपन रुकते हैं, फास्ट ट्रेन में जाएंगे, जल्दी विरार पहुंचेंगे, जल्दी चर्चगेट पहुंचेंगे। जो हमारे में से और राष्ट्रवादी में से टूट करके कॉरपोरेटर भागे थे 2010 में, 2012 में, अब उनको लगता है कि कांग्रेस की दुकान में नया माल आया है,
अब इसकी एक्सपायरी 10 साल तक होने वाली नहीं है, तो चलो अपन वापस कांग्रेस के डब्बे में उड़ी मारते हैं। मगर राहुल गांधी जी ने बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा है, जो लोग पार्टी के खराब वक्त में पार्टी छोड़ के गए हैं, ऐसे लोगों के बारे में पार्टी बिल्कुल नहीं सोची। Tomorrow CM is dating Meera Bhander sir, and news is that Maharashtra government is going to announce cow as a Raj Mata, is going to give a status to Raj Mata darja. Then what is the stand of Congress on this decision? अब उनको अनाउंस तो करने दो, Tomorrow is अब उनको करने तो दो, अब उनको करने तो दो। कर देते तो आपका क्या रिएक्शन रहेगा उसको? तो गाय जो है पूरे मुल्क के अंदर एक अपना स्थान रखती है, आधार का स्थान रखती है। लोग उसको धार्मिक रूप से देखते हैं। मैं एक शेतकरी हूँ, एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, मैं एक एग्रीकल्चरिस्ट हूँ, और गाय जो है साइंटिफिक वे में एग्रीकल्चर के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है, वो भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से चला आया हुआ है। इनको आज पता लग रहा है। इसके ऊपर कभी अर्क से चर्चा करेंगे। भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से गाय को गौ माता कहा गया है। पंडित जी, आपके सवाल का जवाब दे दिया हमने। ये इनको आज पता लग रहा है कि इसको गौ माता बोलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के ज़माने से गाय को गौ माता कहा गया है। इनको आज पता लग रहा है, इसलिए इनको भी देर आए दुरुस्त आए। basically I'm expecting Mr. Joseph to comment because he belongs to Kerala. No. Basically, he has not come for that purpose. So let us finish this. सर लास्ट क्वेश्चन। जी। मुजफ्फर सर, सब टिकट का चाहे जब फैसला हो, हाँ। लेकिन मीरा भाईंदर के लोग ये मान के चलते हैं, हाँ। कि कांग्रेस के उम्मीदवार सिर्फ मुजफ्फर हुसैन होंगे, क्योंकि पिछली बार जो जबरदस्त वोट मिली थी, तो उस हिसाब से क्या कहना चाहेंगे? देखिए कैसा है, भगवान की, ईश्वर की, खुदा की, अल्लाह की बड़ी मेहरबानी या कृपा है मेरे पे, कि कुछ लोग इस शहर में आते हैं, मुझे शहंशाह कह के जाते हैं। कुछ लोग इस शहर में आते हैं, मुझे सरकार कह के जाते हैं। मैं सरकार भी नहीं हूँ, शहंशाह भी नहीं हूँ, मगर बगैर ताज का बादशाह हूँ।